morning. How are you? I'm fine, thank you. In our previous chapters or classes, we have finished with the auxiliary verb with the main verb. So here I am with a summary of it कि अब तक हमने क्या पढ़ा. Because ये जब तक के we are not practicing again and again, we keep on forgetting the things. So the best way to remember is to practice every day, so that our the memory lane or memory path becomes thickened. आप इतना प्रैक्टिस करें so that you will not forget. अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? Keep on speaking, keep on writing, keep on listening, and then definitely one day you will be very comfortable with whatever I am teaching to you. And आपका कंसेप्ट जहाँ क्लियर होने लगता है, when you are getting the answer of why, then it means you have understood the concept. So it is not difficult, it is only the part of conversation, that's all. बस आपको ये ध्यान में रखना है कि which verb will be used with which person, first person, second person, third person, singular or plural. इस तरह से यदि आप ध्यान में रखते हैं, then it is very easy to have the conversation with the people. But whenever you are going to your office, you are talking to your children, to your shop or mall, wherever you are going, एक या दो sentences आप please conversation में लाएं, practice करें, don't hesitate. ये जो hesitation है, that only we have to overcome. So, as present tense we have done, past and future भी हमने कर लिया है, तो एक यहाँ पे मैंने summary बनाई हुई है, that what all things you have to keep in mind. एक जगह पे I have written everything. For an example, present tense में I have written about the first person singular plural, second person singular plural, third person singular and plural. तो से सपोज यदि हम वर्ब की बात कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, हमारे एक्शन को नहीं बताता है, जैसे आई एम अ टीचर, तो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग, फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग या मैं किस प्रोफेशन में हूं, दैट इज अ टीचर. इफ आई वांट टू यूज एज द वर्ब एज एन एक्शन, then it is I am teaching. तो teaching जो है that is main verb, my action. इसी तरह से if say suppose I am talking about any third person, my sister, my brother, anyone, तो उसके साथ कौन सा verb लगेगा? main verb को कैसे हम change करेंगे? present and past में एक छोटी सी summary I have created here for your reference. So let's see. जैसे पहले is, am, are. I के साथ हमेशा am लगेगा. I am a teacher. I am a housewife. I work hard. ये सब state of being बताता है, चाहे वो mental हो चाहे physical हो. Mentally भी हो सकता है, concepts हो सकते हैं, ठीक है. I am happy, I am sad, I am angry. ये सब आपके moods को reflect करता है. So that is I के साथ हमेशा am लगेगा. Say suppose I am lucky. That is a state of being that I am lucky. Then if I am talking about a we का plural, then are use होगा. So here basically to be verb मैंने आपसे share किया था. To be verb is am, are. I के साथ am, we के साथ are, और कोई भी वर्ड आप स्टेट ऑफ बीइंग में लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज you के साथ हमेशा are. कभी भी आप सेंटेंस का बोल रहे हैं या कॉन्वर्सेशन में हैं, you के साथ, you इज सेकेंड पर्सन, जैसे हम बात कर रहे होते हैं you, उसके साथ हमेशा are लगेगा प्रेजेंट टेंस में. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. You are looking great. You are fabulous. You are a good housewife. You are my good friend. तो ये सब state of being है. So please when you are using you, तो उसके साथ आप are use करेंगे. You are lucky. You are lucky for me. You are a lucky charm for me. Use sentence.
कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई सिचुएशन हो तभी आप, एनी टाइम टेल टू योर चिल्ड्रन यू आर लकी फॉर मी डियर, ऑल दिस थिंग, फाइन। उसके बाद ही शी एंड दे, ही शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन। देन शी इज लकी, इज लग जाएगा, आई के साथ हमने एम लगाया, प्लूरल वी यू, दे के साथ आर लगेगा, ही शी के साथ इज लगेगा। आई एम लकी, यू आर लकी, शी इज लकी। तो इज एम आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यूज करें आप, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव टेकन मेन वर्ब। मेन वर्ब के कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इसको आप कॉन्वर्सेशन में लाइए, सेंटेंसेस बनाइए, छोटे पैराग्राफ्स लिखिए। तो हियर आई हैव टेकन लाफ एंड लाफ्स, ये V1 होता है, दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, हमेशा ध्यान रखिए। आई एम टॉकिंग प्रेजेंट टेंस जिसमें V1 लगता है, ठीक है। लाफ, आप सब में आई वी यू दे लाफ, सब में लाफ होगा, बट ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर में द वर्ब एंड्स विथ एस और es। ये प्रीवियस अपने नोट्स में, अपने क्लास में मैंने बताया था आपको कि वर्ब V1 इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि आप नहीं भी याद रख पाते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही शी इट एनीथिंग, बट सिंगुलर होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तब आपका वर्ब एस और es से एंड होता है। मैंने आपको बताया था ओ वाले वर्ब्स हैं, बहुत सारे जो वर्ब्स हैं, जो आई हैव गिवन द नोट्स ऑल्सो, कहाँ es लगेगा, अदरवाइज सारे वर्ब में s लगता है, प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मेन वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब। नेक्स्ट आते हैं इज एम आर ing फॉर्म, दैट इज V4 फॉर्म, दैट इज ing फॉर्म, दैट इज टॉकिंग अबाउट एनी एक्शन इन कंटिन्यूएशन, जो प्रोग्रेस में है, प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में भी हो, बट आई एम डीलिंग नाउ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा विथ ing फॉर्म, मेन वर्ब के साथ। ये डिफरेंस आप समझे, पहला वाला एग्जाम्पल मैंने जो दिया, दैट इज it is not showing the action but the state of being, but यहाँ पे it is showing the action of the person or the subject। उसके साथ is am are कहाँ लगेगा, अब प्रेजेंट में हमेशा आपका मेन वर्ब विल एंड विथ ing। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, रीडिंग, रीडिंग इज माई एक्शन, सो आई एम रीडिंग, आई के साथ am ही लगेगा, आई एम रीडिंग, we are reading, you are reading, he she is reading, he is reading, she is reading, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ is लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल में they are reading। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ना वर्ब फॉर्म मैंने बहुत सारा लिखा है, राइट, प्ले, ले, लाई, ये दिस आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स, ले, लाई एंड लाई, ये कहाँ पे कैसे आपको समझ में आएगा। ले मने लेटना है, लाई मने रखना है, ऑल दिस थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ ये कॉमन वर्ब्स हैं, मैंने लिखा है, इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेक्शन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप हमेशा याद रखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम लकी, प्रेजेंट है, तो वॉज और वर पास्ट टेंस हो जाएगा। आई वॉज लकी, I was lucky enough, but now I am not lucky, that way. So, if I am talking about was and were, पहले तो ध्यान रखिए, past tense में was and were लगेगा आपके different subjects के लिए, ठीक है। तो I के साथ was लगेगा, we के साथ were, ठीक है। Next, it is I am talking again state of being. Next, you were lucky, you were lucky. The speaker is first person, the to whom I am speaking is the second person, about whom we are speaking is the third person. Fine. He, she and they. He, she was lucky, he was lucky, she was lucky, they were lucky. Plural में were लगेगा. Coming to next, second form of the verb, that is laughed. Here I am talking about the main verb. Main verb का मतलब होता है action of the subject. Action of the subject. तो इसलिए
लगता है, V2 यदि आपको याद भी नहीं है तो ये याद कर लीजिए कि लाफ का पास्ट टेंस होगा लाफ्ड। तो ये बहुत सारे मैंने आपको वर्ब दिए हुए हैं, इसको याद कीजिए, इसको लिखिए एंड इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज। सो आई लाफ्ड, वी लाफ्ड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हर पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगुलर और प्लूरल, लाफ्ड ही लगेगा। मतलब सेकेंड पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। इट इज कॉमन फॉर ऑल, आई, वी, यू, ही, शी, दे, लाफ्ड। ओके, नाउ वॉज एंड वर वर्किंग। अभी देखिए वॉज एंड वर्ब यहाँ भी था बट वो स्टेट ऑफ बीइंग था। आई वॉज लकी, वी वर लकी। अब यहाँ पे क्या है, वर्किंग। वर्किंग मेरा मेन वर्ब है, दैट इज इंडिकेटिंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज इंडिकेटिंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वॉज, वर, वर्किंग, आई वॉज वर्किंग। सो यदि कोई भी चीज पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, इफ इट इज कंटिन्यूइंग, देन आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। बट वॉज एंड वर आपको इंडिकेट करता है कि आपको पास्ट टेंस में लगाना है आईएनजी फॉर्म के साथ। आई वॉज वर्किंग, वी वर वर्किंग, यू वर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, दे वर वर्किंग, कोई भी प्लूरल वर। नाउ ये जब आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगता है, जब आप सेंटेंसेस बनाने लगते हैं, then it is very easy for you to frame the sentences of your own. A few, go, went, gone, मैंने लिखा है यहाँ पे few verb जो बहुत कॉमन वर्ब है, जो हमको डेली यूज आते हैं, that is go, went, gone, going। ठीक है, तो go, I go to temple, ठीक है, I went to temple, he has been, जो भी gone का थर्ड फॉर्म, अभी we are not dealing with this, इसलिए V1, V2 एंड वर्ब ing को हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी विल गो टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सो हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस गो, वेंट एंड गोइंग, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई वॉज गोइंग टू टेम्पल, प्रेजेंट एंड पास्ट में यूज कीजिए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, पास्ट हो गया, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ, देन ये प्रेजेंट हो गया। Okay, now if I am talking about lay मतलब लेटना, सॉरी lay मतलब यहाँ पे पहला जो है रखना, किसी चीज को रखना। कोई भी चीज आप रखेंगे मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप रखेंगे, ये पहली बात। लाई एक होता है जो झूठ बोलना, ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, आई नो यू आर लाइंग, ठीक है। तो लाई कैसे से डिफरेंशिएट करेंगे, एक दूसरा लाई है लेटना, यू आर लाइंग ऑन द सरफेस, ठीक है। कोई चीज को हम रखते हैं, माने ऑब्जेक्ट है, ले का आपको ध्यान रखना है, लेड, लेड, लेइंग, आई एम लेइंग दिस पेन ऑन द टेबल, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसके लिए, ले के लिए, रखने के लिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट झूठ, दैट इज हैविंग नो ऑब्जेक्ट, that is having no object, सिर्फ why are you lying, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये वर्ब है, all these are verb। now lie, किसी भी सरफेस पर जब हम कोई चीज रखते हैं, that is lie, that is maybe myself, maybe anything, that is लेटना। I lied down on my bed, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, आप कोई चीज रखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होता है, बट बाकी दो चीजों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है। यूज कीजिए एंड लेट मी नो इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। हैप्पी लर्निंग।